So good morning everyone. Now we are already in Laplace transformation chapter. So as I mentioned earlier, the ROC definition of Laplace, inverse Laplace transformation. So if you have any doubt regarding ROC, and also we have solved few problem yesterday and before class. So if you have any doubt regarding that numericals or any sort of concept, you can ask me the question before studying the lesson. Basically, this chapter is most important for you. Yesterday, we have completed the class by that problem. Okay, this is most important. Just I am starting 1 second from here, then we'll move further. So the problem is that eh, why I am repeating it, because these are very much conceptual questions. Okay, questions in numericals, conceptual numericals, that you have to understand very clearly. So the problem is xt is equal to the power minus a mod t. So mod t means that should have limit, that should have minus and plus values. So we can find out the expression here. Xt should be e to the power minus a dut for positive value of t, and for negative values of t, t itself negative, so e to the power at हो जाएगा, और and it should be u of minus t. So as it is for minus t, so that's why u of minus t is introduced here. This is for positive values of t, so that's why ut is introduced here. So these two expressions we got. If we expand this expression, we got this that sort of expressions. xt as now x1 t plus x2 t. So already e to the power minus at u t के लिए हम लोग Laplace transform कर चुके हैं, but now you have to find out Laplace transformation for this part. Okay. So there is a formula, simple formula is there. So x2t is equal to the power at u minus t. That is the expression here.
सो x2t के लिए लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन x2s होगा। तो माइनस इन्फिनिटी टू जीरो, व्हाई वी आर राइटिंग माइनस इन्फिनिटी टू जीरो, बिकॉज देयर इज यो माइनस t, so that's minus infinity to 0 e to the power 80 u of minus t, and u of minus t value should be unity here from minus infinity to 0 and 0 to positive infinity, u of minus t value is 0. So that's why we have taken that sort of expression. Now take t common, a minus s, that is the integral part. Now take the integration of that signal, that function, so we'll get 1 by s minus a with the negative sign. So that is your Laplace transformation form for e to the power 80 minus u minus t के लिए ये तुम्हारा Laplace transformation. But we do not know the region of convergence for this signal, for this x2. So to find out the region of convergence, we know that st e to the power minus st, in the place of s we write sigma plus j omega every time. So that's why, that means real part and imaginary part always we do that. So this is your real part, this is your imaginary part. So e to the power a minus sigma into t e to the power minus j omega t, that always unity. Okay. So see here, if you put lower limit minus infinity, that will give you 0 value here. If you put 0 value t, then it will give you 1. So it will be convergent if a minus sigma itself is a positive. A minus sigma should be always positive. If it is negative, then that will not converge. So the condition is that for the region of convergence, we got the condition here, which is nothing but a minus sigma should be greater than 0. So that's why I'm repeating it once again, because you have to understand how to find out region of convergence when we are going to find out any sort of solution for Laplace transformation procedure. So for x2s के लिए फाइनाइट तब भी होगा और कन्वर्ज होगा जैसे a माइनस सिग्मा शुड बी ग्रेटर देन 0, जैसे मैंने बोला. तो फ्रॉम दैट वी कैन राइट a ग्रेटर देन सिग्मा और सिग्मा लेस देन a, sigma less than a, or real sigma. What is sigma? Sigma basically it's a real part of s value. So that's why every time we are writing real part of s is less than a. तो यहाँ पे हम लोगों को मिला ये sigma should be less than a. This is your region of convergence. So what was the region of convergence for that? Sorry, x1 t is equal to the power minus a t. We know that. This is well known. We have uh, found out earlier. So e to the power at minus u minus t के लिए minus 1 by a से, that was your Laplace transformation form, and region of convergence is that. Now we know that e to the power minus at ut के लिए फूरियर Laplace ट्रांसफॉर्म क्या होता है, 1 by s plus a होता है. रीजन ऑफ कन्वर्जेंस क्या होता है ना, सिग्मा ग्रेटर देन माइनस ए. तो यहाँ पे सिग्मा ग्रेटर देन माइनस ए बोल रहा है, यहाँ पे सिग्मा लेस देन ए बोल रहा है. So that means two extremities is there at minus a and plus a. Two extremities is there. So region of convergence for both the signals के लिए क्या होगा, in between these two range होगा. Okay. So x1s के लिए region of convergence we got here. Okay. x2s के लिए we got region of convergence here. Now we have to plot here. So combinedly what will be the region of convergence? देखो combinedly x1s plus x2s is equal to xs होगा. ठीक है. So xs is equal to x1s plus x2s, क्योंकि दोनों एक्सप्रेशन का साम हो जाएगा. ये कि xt is equal to था x1t plus x2t. So इसलिए लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्म में भी वो एडिटिव हो जाएगा, सुपरइम्पोज हो जाएगा, सुपरपोजिशन थ्योरम. ओके. So additive in nature. So x1s plus x2s we have written over there, and we got finally 1 by s plus a minus of 1 by s minus a. तो देखो नीचे में क्या है, s plus a s minus a, ऊपर में क्या हो जाएगा, s plus a, यहाँ पे s minus a minus of s plus a, so minus of s minus a, s cancel out हो जाएगा, minus twice a. That is your a plus b into a minus b. We know that in algebraic method. So a square minus a square हो गया, नीचे में square minus a square हो गया, ऊपर में twice a minus twice a. So ultimately that is the resultant Laplace transformation of xt, what I have taken earlier. So x of s is nothing but minus twice a divided by a square minus a square, a square minus a square.
तो व्हाट इज द रीजन ऑफ कन्वर्जेंस? सिग्मा ग्रेटर देन माइनस ए होगा यहाँ पे और सिग्मा लेस देन प्लस ए होगा। तो ड्रॉ करो यहाँ पे, देखो सिग्मा एक्सिस इधर है, इधर जे ओमेगा एक्सिस है। तो दो पॉइंट है, कहाँ कहाँ है, प्लस ए माइनस ए, ठीक है। सिमिलर काइंड ऑफ पोल्स आर देयर, वन इज एट माइनस ए, अदर इज एट प्लस ए। तो पहले वाला क्या था, सिग्मा सिग्मा ग्रेटर देन माइनस ए, तो सिग्मा is minus a here, that should be greater than, then region of convergence should be something like that, माइनस ए से शुरू होकर वो राइट साइड जाएगा। और दूसरा जो लेप्लास था उसका रीजन था लेस देन ए, सिग्मा लेस देन ए, यहाँ पे ले है, लेस देन मीन्स इधर होगा। तो डबल साइडेड हो गया, इसलिए कॉमन एरिया रीजन ऑफ कन्वर्जेंस होगा। ओके, रीजन ऑफ कन्वर्जेंस होगा। तो ये था तुम्हारा सॉल्यूशन प्रॉब्लम का। नाउ टुडे वी गो फॉर सम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम, आई विल गिव यू सम प्रॉब्लम यू हैव टू सॉल्व एट योर होम राइट नाउ। सो we take 2 3 properties and I will give you some numericals for solving. So now suppose xt is the signal, we are taking Fourier transform, तो क्या होता है वो x of j omega और x of omega simply we can write। तो xt is equal to क्या था, 1 by twice pi minus infinity to plus infinity x of j omega e to the power j omega t d omega। यही था तुम्हारा इनवर्स फूरियर ट्रांसफॉर्म का फॉर्मूला। Now what we have done here, in the case of Laplace, what is the Laplace transformation? X of sigma plus j omega, isn't it? That is x of s. What is this? Laplace transformation of xt. Laplace transformation of xt, that is x of s। s की जगह में हम लोग लिखते हैं sigma plus j omega. So we can easily write down x of sigma plus j omega. We don't have any confusion here. Now ये जो एल टी ऑफ एक्स टी, इसका इक्विवेलेंट हम बोल सकते हैं, तो बता सकते हैं, वी कैन एक्सप्रेस इट एज फूरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ एक्स टी इंटू द पावर माइनस सिग्मा। मालूम है कि नहीं बोलो? पहले जो शुरू किए थे हम लोग लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन, वहां पे हम दिखाए थे व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन द लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन एंड द फूरियर ट्रांसफॉर्मेशन। तो फूरियर ट्रांसफॉर्म xt इंटू दी पर माइनस सिग्मा टी, xt से जब इंटू दी पर माइनस सिग्मा टी मल्टीप्लाई हो जाएगा, if you take Fourier transform of that signal, then we will get that is equivalent to, please wait 1 minute, someone has come, okay, wait for 1 minute।
तो ये तुमको मालूम होना चाहिए xt उसके साथ xt का फूरियर लैप्लास ट्रांसफॉर्म होगा तो एक्सेस है, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं, दिक्कत नहीं है। लेकिन फूरियर ट्रांसफॉर्म xt होगा तो वो x ऑफ ओमेगा होता है। लेकिन xt के साथ तुम एक्सपोनेंशियल सिग्मा डी माइनस सिग्मा टी मल्टीप्लाई कर दोगे एंड इफ यू टेक फूरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ द होल सिग्नल व्हिच इज इक्विवेलेंट टू Laplace transformation of xt. We know that. Okay, so you for that you follow my previous lectures, okay, previous videos and the class notes. Okay, so over there if you go through that, I have clearly mentioned over there xt is with you. If you multiply xt with e to the power minus sigma t, then if you take Fourier transform of that as a whole signal, which is nothing but equivalent to the Laplace transformation of xt. That is true. Okay, so what does it mean here? Xt into e to the power sigma t, if you take Fourier transform, so that is x of s or x of sigma plus j omega. That is true. Now inverse Fourier transform of x of sigma plus j omega. देखो Fourier transform ये प्यार है, xt into to the power sigma t को Fourier transform करने के लिए हम लोग ये मिलता है, ये Fourier transform मिलता है। Now x of sigma plus j omega मिलता है। Now if you make the inverse Fourier transform of this, so we definitely get this signal again back. So that's I have written here. Inverse Fourier transform of this we again will get that signal. Okay. So inverse Fourier transform of x of sigma plus j omega, that means we are getting xt into e to the power minus sigma t, as per the relation of the Fourier transform and inverse Fourier transform that I have written here. So what is the formula? 1 by twice pi minus infinity to the plus infinity. Okay, x of this x of sigma plus j omega e to the power j omega t into d omega. देखो ये तुम्हारा फॉर्मूला है, इनवर्स फूरियर ट्रांसफॉर्म का ये फॉर्मूला है। xt से x ओमेगा होता है इसलिए x ओमेगा इधर लिखा है, और xt into e to the power sigma t जब फूरियर ट्रांसफॉर्म होता है हमको x of sigma plus j omega मिलता है, तो इसलिए जब इनवर्स फूरियर ट्रांसफॉर्म तुम करोगे विल गेट xt into e to the power minus sigma t मिल जाएगा। तो यहाँ पे क्या होगा, इंटीग्रेशन के अंदर में क्या होगा, x of sigma plus j omega, क्योंकि ये दोनों फूरियर ट्रांसफॉर्म तैयार है। तो इनवर्स if you make Fourier transform of this xt into this will get that Fourier transform. Now if you make inverse Fourier transform of this signal will definitely get back that signal. So that I have written here 1 by twice pi minus infinity to plus infinity x of sigma plus j omega e to the power j omega t d omega. Okay, now xt is equal to 1 by twice pi. Okay, देखो xt into to the power minus sigma t is equal to this. Now from there you find out xt, because you have to find out xt, isn't? You have to find out xt. So xt is equal to क्या होगा, e to the power minus sigma t इधर चला जाएगा, तो जब ये इधर चला जाएगा राइट साइड में तो ये प्लस हो जाएगा, e to the power प्लस sigma t हो जाएगा, करेक्ट, बिकॉज यहाँ पे आकर ये नीचे में होगा, ऊपर में वो जब चला जाएगा e to the power प्लस sigma t हो जाएगा। दिस इज वेरी मच सिंपल मैथमेटिक्स, आई थिंक I need not to explain more. So x of t is equal to 1 by twice pi as it is minus infinity infinity to plus infinity x of sigma plus j omega. इधर देखो e to the power j omega t है और sigma e to the power sigma plus t आ गया, तो if you take t common तो एक्सपोनेंशियल में क्या आ जाएगा, sigma plus j omega into t d omega आ जाएगा। So that is your xt. Okay, that is your xt. Xt is equal to 1 by twice pi minus infinity to plus infinity x of sigma plus j omega e to the power sigma plus j omega into t into dw, that we get. Okay, but we can't say it's a equivalent to Laplace inverse transformation, because Laplace transform में d omega नहीं होना चाहिए, तो इसलिए यहाँ पे we have to take some considerations. We have to take some considerations here. What is that? Sigma plus j omega is equal to s. Let us assume sigma plus j omega is equal to s. We know that
सिग्मा प्लस जे ओमेगा को हम लोग एस लिखते हैं, तो ओमेगा को हम लोग एस फॉर्म में लाना चाहिए यहाँ पे, ठीक है। तो इसलिए ये चेंज ऑफ ऑपरेटर वी हैव टेकन हियर। तो ये क्या होगा, एस का रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो ओमेगा रेस्पेक्ट में, तो क्या हो जाएगा, सिग्मा का वैल्यू 0 हो जाएगा, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, ds बाई डी ओमेगा, एस के लिए ds बाई डी ओमेगा, एंड ओमेगा रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट होने के लिए ये क्या हो जाएगा, j हो जाएगा। सो ds बाई डी ओमेगा इज इक्वल टू j। इज दिस क्लियर टू यू और नॉट? Sigma plus j omega is equal to s, both side you differentiate it with respect to omega. So ds d omega, right side में ds d omega sigma 0 हो जाएगा, and ds d omega as you are integrating with respect to omega, so differentiation you are differentiating with respect to omega, so j omega क्या हो जाएगा, j हो जाएगा। So ds by d omega is equal to j, so d omega is equal to ds by j, d omega is equal to, so डी ओमेगा जगह में हम क्या लिखेंगे, ds बाई जे लिखेंगे, ds बाई जे लिखेंगे, एक सब s हो जाएगा, e टू द पावर st हो जाएगा। नाउ व्हाट अबाउट द लिमिट, नाउ व्हाट अबाउट द लिमिट, देखो यहाँ पे ओमेगा का वैल्यू माइनस इंफिनिटी है, यहाँ पे ओमेगा का वैल्यू प्लस इंफिनिटी है। सो व्हेन ओमेगा वैल्यू इज प्लस इंफिनिटी, s क्या हो जाएगा, s भी इंफिनिटी हो जाएगा, सिग्मा प्लस जे इंफिनिटी हो जाएगा। सिग्मा है प्लस ओमेगा इंफिनिटी, तो s इक्वल टू सिग्मा प्लस j infinity, sigma plus j infinity. Now if you consider omega is equal to minus infinity, तो ये क्या हो जाएगा, s is equal to sigma minus j omega हो जाएगा, sigma minus j omega हो जाएगा, तो sigma minus j omega। So two limits we got here. So now xt चेंज होके xt is equal to 1 upon twice pi इधर है, लोअर लिमिट क्या हो जाएगा, sigma minus j infinity, अपर लिमिट क्या हो जाएगा, sigma plus j infinity, x ऑफ ये क्या हो जाएगा, x ऑफ s हो जाएगा, ये e टू द पावर st हो जाएगा, एंड ds बाई j हो जाएगा। तो ये हो गया, मैंने बैठा दिया ऑल द वैल्यूज हियर। सो ये j बाहर आ जाएगा, 1 बाई ट्वाइस बाई j, सिग्मा माइनस j इंफिनिटी, सिग्मा प्लस j इंफिनिटी, x ऑफ s e टू द पावर st ds। So that is your xt, that means this is the formula of inverse Laplace transformation. So that is the expression for inverse Laplace transformation. So if you have any doubt regarding this inverse Laplace transformation expressions, how it comes, so you can ask me the question. But we'll will not prefer using this formula. Better we'll use some other technique. Okay, जैसे in our previous class we have taken some examples, partial fraction method, all these things, because you have to remember few standard Laplace transformation pair. Laplace transformation pair. So using that Laplace transformation pair, you can easily write the you can get back the signal again. So this is your direct inverse Laplace transformation का formula. किसी को भी डाउट है कैसे ये आ गया फ्रॉम Laplace transformation से inverse Laplace transformation कैसे ये हो रहा है, if you have any doubt regarding this proof of this formula, so you can raise your questions, no doubt about that, I can explain it one more time. बोलो किसी को भी डाउट है तो बोलो कैसे ये आ गया, ये है एक्सेस से xt हो गया, पहले क्या था xt से एक्सेस मिल रहा था, सो xt से एक्सेस जो मिल रहा था वो बोलता है क्या, Laplace transformation, when we are getting back the signal xt, that is called inverse. So if you have any doubt, this सर ये कैसे आ गया, having you doubt, so you can ask me the question, otherwise we go for some properties. तो और एक चीज तुमको, तुम लोग सुन रहे हैं ना, सुनाई दे रहा है ना? Yes, sir. अच्छा अच्छा ठीक है। तो एक चीज मैं बोलना चाहता हूँ, tomorrow we'll have one mini project class, okay, we'll do that.
Are you agree or not? Tomorrow? If you don't have interest, so I do not take your class. Okay. If you are interested, so I can go for that. बोलो क्या करोगे? So as you are silent, I don't understand whether you are agree or not. Okay. तो बोलना चाहिए because that also included in your syllabus. Okay. So that's why you have to attend that class. तो उसके बारे में कुछ बोलना है तो बोलो. तुम घर में कर रहे हो ना वो आर्डिनो प्रोग्रामिंग? तुम लोग ना साइलेंट रहते हो, कुछ बोलता है इसलिए बहुत प्रॉब्लम है, दिक्कत की बात. तो कुछ बोल रहे हैं उसके लिए तुमको तो बोलना चाहिए. हो रहा है कि नहीं, कुछ प्रॉब्लम है कि नहीं, तुम कुछ बोलता नहीं. सर ऑर्डिनो वाला लेना है तो सर ले वो लीजिए. हाँ नहीं हम तो तो ले लेंगे, तुम बोलेगा नहीं बोलेगा हम ऐसा है तुम्हारा तुम्हारा इंटरेस्ट है कि नहीं इस जानने के लिए मैंने बोल रहा था. हम तो क्लास ले लेंगे. सर मेरा तो है, बाकी सबसे पूछ लीजिए सर. और नहीं मैं तो पता, क्लास ले सबका तो लूंगा. नहीं सर पता. मुझे भी इंटरेस्ट है. तो मैंने जब पूछा ना तो तुम लोग साइलेंट हो गया, क्योंकि देखो मैंने बोला ये जो है तुम्हारा सिलेबस में भी है, ठीक है. तो उससे ज्यादा है, तुम कुछ कुछ सीखोगे ना तो डेफिनेटली तुम्हारा कुछ काम में आ जाएगा. मैं बहुत कोशिश कर रहा हूँ, तुम देख रहे हो ना. मैं खुद वीडियो बना के वो ग्रुप में मैं डालता हूँ, क्योंकि जो पहले से वो जो क्लास होगा ना पहले से तुम लोगों के पास कुछ आइडिया होना चाहिए, इसलिए मैंने दे दिया. तो कल डेफिनेटली हम लोग कॉल करेंगे. और वन चीज मैं बोलना चाहता हूँ, आजकल कॉलेज नहीं है, आजकल स्कूल में भी कोडिंग हो रहा है. तुम देखो ना, है कि नहीं? झूठ बोल नहीं रहा सर, हूँ? करवाइए, कोई दिक्कत हाँ कोडिंग का काम ये जो नहीं. है ना. क्लास तो समझ आता नहीं सर. हाँ हाँ सर, हाँ हाँ, कराइए ना ना सर. सही तो कराएंगे, तो श्योर कराएंगे. तो ये स्कूल में भी सीबीएसई आईसीएसई, ये तुम्हारा झारखंड बोर्ड हो और हमारा वेस्ट बंगाल बोर्ड हो, जैसा हो, सभी जगह में ना ये कोडिंग स्कूल लेवल में आ गया हो. तुम लोग तो ग्रेजुएट हो रहा है, तुम तो ग्रेजुएट कर रहे हो, है कि नहीं? बीटेक एक ज्यादा भारी डिग्री है. सर यस सर. हाँ. सर तो हाँ एक बोलो. चीज पूछना था. वो जो हाँ बोलो. ऑर्डिनो का जो था ना सर, उसका जो एक ऐप है, उसका क्या नाम था सर, जिसमें हम लोग हाय फिजिकली भगवान, मतलब इतना उसका सारे क्लास के भूल लिए गए सर. इतना वीडियो छोड़ दिया. सर हाँ भूल गए, थोड़ा सा बता दीजिए ना, वो तो ऐप का पहला नाम वाला जो क्या था. वीडियो है देखो, तुम लोग देखता नहीं है. टिंकर कैट, मैं तो बोल देख दूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है. सर तो टिंकर कैट. टिंकर सर कैट, जो सर टिंकर कैट तो पता है, नहीं जो ओ फिजिकली जैसे आर्डिनो है वो उस तो पे जो प्रोग्रामिंग वो डाल. आईडीई, वो तुम्हारा आर्डिनो. तुम ये करो आर्डिनो डॉट सीसी में चला जाओ, ठीक है, वहां पे तुम्हारा ये सॉफ्टवेयर मिल जाएगा, आर्डिनो ओके सर. सॉफ्टवेयर. ठीक है, आर्डिनो सॉफ्टवेयर आईडीई ओके सर, बोलता है वो, आईडीई. यही पूछ रहे थे हाँ सर. हाँ, तो वो लैपटॉप में आ जाएगा. और ये जो तुम सिमुलेटर में जो हम लोग कर रहे हैं ना ये जो कोडिंग, वो कोडिंग तुम्हारा वो सॉफ्टवेयर में भी ये काम तो करेगा. पता है सर, टिंकर कैड में होता है. हाँ हाँ. हाँ सर, उसको तो कॉपी पेस्ट कर ठीक देने ठीक पर. करना. हाँ तो ये बहुत बढ़िया चीज है, ठीक है. ये सबको पता नहीं है, बहुत सारा लोग ये देख के बोल रहे हैं ओए बढ़िया चीज है. तो ये चीज ऐसा ऐसा नहीं आता है बाबू, इसके लिए हम बहुत कोशिश कर रहा हूँ. मैं बहुत सारा एफडीबी फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम जो एआईसीटी में होता है ना, तो मैं बहुत कनेक्टेड रहता हूँ, बहुत सारे करते हैं हर ईयर में हम 3-4 तो करते ही हैं, ठीक है. तो ऐसा नहीं होता है, हर सारा दिन हम लोग इसके ऊपर काम कर रहे हैं, ठीक है. मेरा रिसर्च के लिए बुक पब्लिकेशन, बुक चैप्टर पब्लिकेशन, तुम्हारा प्रोजेक्ट, तुम्हारा जो क्लास है, उसके बाद कॉलेज का कुछ काम है वो भी, तो बहुत सारा हम लोग कर रहे हैं. तो
ये जो मैंने यूट्यूब चैनल बनाया है, वर्चुअल गाइडेंस फॉर टेक्निकल प्रोजेक्ट, वो तुम शेयर करते रहना है। तो क्योंकि जितने सारे शेयर होगा बहुत सारे लोग को ये उपकार में आ जाएगा, काम में आ जाएगा। तुम्हारा जो सिस्टर और ब्रदर होगा तो वो जो स्कूल में होगा तो तो उन लोगों की भी ये काम में आ जाएगा, क्योंकि ये बेसिक लेवल का है। और प्रोजेक्ट का जो चीज़ है वो स्कूल लेवल से शुरू होना चाहिए, ठीक है। सो नहीं तो प्रॉब्लम हो जाएगा। आजकल साइंस एंड टेक्नोलॉजी कितना दूर चला गया, हम लोग कहाँ पे हैं, ठीक है नहीं। तो ये कोशिश करते रहना। सो यू शुड फॉलो द वीडियो लेक्चर्स। सो डेफिनेटली टुमारो विल टेक आवर क्लास फ्रॉम 9:30, ओके, फ्रॉम 9:30, ओके। सो 9:30 से हम लोग क्लास लेंगे, हाँ, 1 घंटा हम ले लेंगे। तो तो वो तुम करो। तो कुछ क्या होम टास्क मैंने दिया था, कल हम देखेंगे। वो क्या क्या बोला था, हेलो वर्ल्ड, दैट मीन्स यू हैव टू प्रिंट योर नेम, इजंट, मैंने बोला था। और कुछ और क्या बोला था मेरे को पता नहीं, तो भूल गया सर। तो ये था, और एक प्रॉब्लम था शायद, तो वो तुम बना के कल दिखाओगे, ठीक है। सो जिसके पास लैपटॉप है प्लीज बी प्रिपेयर, जिसके पास लैपटॉप नहीं है वो फोन में तुम ट्राई करो, तो वो तुम दिखाएगा, ठीक है। एंड टुमारो विल डू वन मोर प्रोजेक्ट, ठीक है। सो ऑल्सो आई एम गिविंग यू थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियोस, बिकॉज तुम्हारे ये काम में आ जाएगा। और तुम जितना देखोगे ना, जितना तुम्हारा भी इंटरेस्ट होगा, मेरा भी उतना ही इंटरेस्ट होगा। क्योंकि ये जो चैनल का एक ये है, फ्यूचर में बोल रहा हूँ, क्योंकि स्टूडेंट लोगों के लिए मैं, ऑर्डिनो के लिए, बिगिनर्स के लिए ये मैं दे रहा हूँ। इसके बाद ऑर्डिनो प्रोग्रामिंग ठीक से सीख जाओगे, उसके बाद हम आईओटी के लिए जाएंगे, आईओटी की तरफ जाएंगे, ठीक है, आईओटी, ठीक है। तो इसलिए बहुत कुछ चीज़ सीखनी है। उसके बाद हम लोग अ, तुम्हारा और कुछ प्रोग्रामिंग जो लैंग्वेज है वो भी हम सिखाएंगे, ठीक है। तो ये ध्यान से सीखो। हाँ, जिसका प्रॉब्लम है, सो तुम पर्सनली भी बात कर सकते हो, सर ये इसी जगह में मेरा प्रॉब्लम है, लेकिन तुम लोग तो बोलता नहीं है। तुम लोग बात कम बोलता है, काम ज्यादा करते हैं, इसलिए आई थिंक दिस इज बेस्ट पॉलिसी, बात कम काम ज्यादा। आई थिंक सो यू आर डूइंग दैट, यू बात कम काम ज्यादा, ठीक है। ये हम लोग का मोटो है, ठीक है। काम करो, काम करते रहना, ठीक है। बट जहाँ पे प्रॉब्लम है, दिक्कत की बात है, वो मत छुपाया करो, वो बोलना चाहिए मेरे को, ठीक है। क्योंकि डॉक्टर, टीचर और लॉयर के साथ चीटिंग नहीं करना चाहिए। तुम ये 3 लोगों के पास चीटिंग करोगे तो तुम अब खुद से चीट हो जाए, ठीक है। तो ये बात है, मेरा पर्सनल या 15-16 साल का जो टीचिंग एक्सपीरियंस है उसी से मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। तो I will try my level best to give you best knowledge from my side, what I know. Okay, every time I will try my level best. So ठीक है, ये बात है। हम लोग जुलाई की एंड तक लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन हम खत्म कर देंगे। अगस्त अगस्त दैट मीन्स 15 अगस्त इंडिया स्वाधीन हो जाएगा, हम लोगों का सिलेबस भी खत्म हो जाएगा, ठीक है। यही बात है। तो किसी को दिक्कत है तो बोलो, कुछ प्रॉब्लम है तो बोलो, टीम नाउ व्हाट आई डिस्कस्ड। तो तुमको कुछ कम्युनिकेटिव होना चाहिए, ठीक है। इसलिए मैंने सोचा, हाँ, नेक्स्ट क्लास में हम कुछ प्रॉब्लम दे दूंगा इसके बाद, क्योंकि और कुछ क्लास लेंगे और उसके बाद हम कुछ प्रॉब्लम बनाएंगे क्लास में। क्योंकि हमारे पास अब जेट ट्रांसफॉर्मेशन ही बचा हुआ है, जेट ट्रांसफॉर इनवर्स जेट, ठीक है। और जो सैम्पलिंग का जो है वो मैंने कुछ बोल दिया, वो 1-2 क्लास है। तो आई थिंक विद इन 15 अगस्त डेफिनेटली 100% सिलेबस कवर हो जाएगा। बट यू हैव टू प्रैक्टिस, ये सागर जैसे सिलेबस है, बहुत बड़ा सिलेबस है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ ये कंप्लीट हो जाएगा। तो अप टू दैट व्हाट आई डिस्कस्ड, तो इफ यू हैव एनी डाउट तो तुम बोल सकते हो, ठीक है। तुम जो पूछते हैं ना, मेरा मन खुश हो जाता है, ठीक है। ये सर ये रिपीट करो, ये सर समझ में नहीं आया, समझ नहीं होने से मेरा मैं खुश हो जाता, जब मैं समझ गया सर
उससे अच्छा लगता है जो लोग बोलता है सर मेरे को समझ में नहीं है। ठीक है, जो लोग बोलेगा जी मेरा सर मेरा समझ में नहीं आया, आई विल बी सो हैप्पी ओवर देयर। यही बात है, मैं बहुत फ्रैंक हूँ तुम्हारे साथ, तब भी तुम लोग बोलता नहीं है कि यह बात है मेरे को। आई थिंक मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स, आई थिंक गेटिंग देयर पॉइंट्स। ओके, जिसका प्रॉब्लम है तो तुम बोल सकते हो सर इधर प्रॉब्लम है उधर प्रॉब्लम है। ठीक है, घर में भी पढ़ाई करो। पता नहीं तुम लोग पढ़ते हो कि नहीं, बहुत सारा क्लास भी होता है रोज। तो ठीक है, बहुत बात कर लिया मैंने आज। ठीक है, डोंट वरी। तो प्रॉपर्टीज हम शुरू करेंगे। ठीक है, तो आज तो टाइम खत्म ही हो गया, पता नहीं कैसे हो गया। तो ये जो प्रॉपर्टीज है ना सेम है, इनवर्स फूरियर ट्रांसफॉर्म में जो था ये सेम है, इसलिए हम लोग प्रॉपर्टीज में हम टाइम नहीं वेस्ट करेंगे। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा हम टाइम नहीं वेस्ट करेंगे। सो अगेन ज्वाइन लेस देन 1 मिनट हो रहा है, लेकिन अगेन